Hello, so let's read the given question. The question says an oscillator of mass 10 kg has velocity of 5 meter per second after 1 second of its crossing the mean position. If the time period is 5 seconds, find the potential and kinetic energy at that instant. So to understand this question, we need to understand about the key concept of energy associated with particle performing SHM. So for an SHM, we can say for a particle performing SHM, its energy associated with particle, that is total energy, is given by the expression half m omega square a square, which is a constant quantity and it is independent of the time. So we can say everywhere, uh, we can say throughout the SHM, we can say the particle is having constant energy, or we can say energy is conserved over here. And in this situation, we can say the total energy, it is nothing but the sum of potential energy plus kinetic energy. So potential energy is given by the expression half m omega square into x square, right? Or simply we can write it as to be half k x square. अब बात करते हैं kinetic energy की. So kinetic energy is again given by the expression half m omega square a square minus of half m omega square x square. So these are the energy terms that we need to keep in mind. Apart from this, अगर particle SHM perform कर रहा है, so its displacement equation is given by the formula x equals to a sin omega t plus phi. यहाँ पे we need to understand the terms. A is the amplitude, omega t plus phi is the phase, and phi is the initial phase, we can say. And from here we can say this is the expression of a displacement of particle at any instant of time t. ठीक. So using these results we will try to answer the question. हमें बोला जा रहा है oscillator है, उसका mass है 10 kg, has velocity of 5 meter per second after 1 second of its crossing the mean position. उसका time period भी हमें given है. We need to find potential energy. So potential energy calculate करने के लिए हमें उसका displacement चाहिए होगा after 1 second. So x will be equals to a sin omega t and omega phi को हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं because the particle is we can consider for a particle performing SHM, particle must start from mean position, और particle जब mean position से start करेगा, so in that situation we can see के initial phase will be taken as 0, right? So a omega a sin omega t हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ से we can calculate the value of this x. Before that we can see कि हमें a की value, we can amplitude is also not been given to us, so we can say x जो हो जाएगा वो हो जाएगा a sin ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी. टी हमें गिवन है 5, that is time period, and 1 second means small t has been given as 1. So here जो result आएगा ये आएगा sin of 2 pi by 5 into x, right? यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास x की, that is coming out to, so ये वैल्यू हमारे पास आएगी x is equals to 0.951 into a, right? So ये वैल्यू मिल रही है x की. ठीक है. अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी तो हम स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन है, सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, लेकिन ये काफ़ी लेंदी जाएगा और वी डोंट हैव टू यूज इट बिकॉज हमें पता है कि जो फॉर काइनेटिक फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग दैट इज ऑसिलेटिंग, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? अब यही एक्सप्रेशन यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे हमने ये लिख के डायरेक्ट सॉल्व किया है ये एक्सप्रेशन. सो वी कैन से डायरेक्ट अगर हम v डाल देंगे वहाँ पे तो v इज गिवन एज 5 गिवन है. सो हाफ m गिवन है 10, v स्क्वायर इज गिवन एज v इज गिवन एज 5, सो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 125 जूल. सो ये हमें मिल गई काइनेटिक एनर्जी. ठीक. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कैलकुलेट x करना ही पड़ेगा स्ट्रिक्टली. सो x के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन.
दैट इज दिस वन। और यहाँ से वी कैन सी कि हम इसको लिख पाएंगे, v हमें गिवन है 5, ओमेगा हमें पता है 2 पाई/t यानी 2 पाई/5 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 0.951 का स्क्वायर 951 a स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये हो जाएगा 25/4 पाई और उसको हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। सो 25 का स्क्वायर 625/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस ऑफ 0.951 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ बचेगा 0.1 इंटू a एंड यहाँ पे ये है a स्क्वायर, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 25 और वी कैन जस्ट से इट एज टू बी 25 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ 0.1, ठीक है। सो फाइनली ये जो आंसर आएगा इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, 6.28 लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर 2.2 इस तरीके से। सो ये वैल्यू को अगर हम फर्दर देखें, सो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन 25 अपॉन 2.2 0.309 होगा बेसिकली, एंड इट विल बी 0.31, ठीक। अब यहाँ से व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ तो हम x की वैल्यू ढूंढ ले, और एल्स वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में से हम काइनेटिक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट पोटेंशियल। सो टोटल एनर्जी की जब हम बात करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। सो हाफ इंटू m इज गिवन एज 10 ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय t इंटू 2 पाई/5 बेसिकली, इंटू a हमें मिला है, a की वैल्यू हम डायरेक्ट डाल देते हैं 25/2 पाई इंटू this value we have calculated it as to be 2.20 ये हमने पूरी वैल्यू इसलिए रखी है so that we can cancel out the common terms square, right। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा। सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.31 का स्क्वायर विल 0.096 बेसिकली, और ये सॉल्व करने पे हमें मिलती है वैल्यू 1302.08 जूल। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी दैट कैन बी रिटन एज देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी 1302.08 माइनस ऑफ 125, and this will be giving us the value of potential energy as 1177.08 joule. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.